Let's clear this September attempt together. Hi everyone, my name is Sia Agrata Sood. I have worked in Big Four in audit. I am here to help you out to clear this September attempt. Now, how this video is different, why I am doing so, and how you will be helped through it. So, let's get started. Firstly, I know this feeling. I have been in your shoes. I know how exactly it feels when we see this window. Few years back, when I was giving my attempts, when I used to enter my roll number and captcha, and then I see the results, everything changed. Everything. Like we studied for hours and hours in our room with our books. We don't even celebrate our birthday. We don't go to any birthday party. We don't go to any wedding. We just sit in our room with our books and we study. And unfortunately, then also we couldn't qualify. So many thoughts come in our mind, like क्या मेरा हो भी पाएगा या नहीं, कहीं मेरी किस्मत ही खराब तो नहीं है, उसने तो मुझसे भी कम पढ़ा फिर भी वो क्वालिफाई कर गया, ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत फील्ड ऑप्ट कर ली है। एंड जब हम ये सब सोच रहे होते हैं, हमारे जीवन में एंट्री होती है कुछ ज्ञानी लोगों की, जो आके हमें बताते हैं कि हमारे मेरी एडवाइस लेके मेरे चाचा के मामा के लड़के ने भी क्वालिफाई कर लिया है, या फिर तुमने ये गलती करी है। अगर आप इन लोगों से चार्टर्ड अकाउंटेंट में चार्टर्ड की स्पेलिंग लिखने बोल दोगे, ये लोग वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ज्ञान पूरा देते हैं। आई नो हाउ इट फील्स, दोबारा से वही बुक्स उठाना, वैसे ही पढ़ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड टेल यू, लाइक आई हैव बीन इन दिस फेज, मैं क्वालिफाई कर गई हूँ। आई एम हेयर टू टेल यू कि ये हो जाएगा, इट इज पॉसिबल। बट कुछ एक लूप होल रह जाता है। जब मैंने क्वालिफाई करा, मेरे को कुछ टाइम बाद एहसास हुआ कि क्यों मेरे को अटेम्प्ट लगे। इट वॉज बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं पढ़ सब रही थी, आई नो द कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। उसके कारण आपने भी नोटिस करा होगा, अगर आपने एक भी अटेम्प्ट दिया है या दो अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपको पता होगा कि आपने पहले अटेम्प्ट में क्या गलती करी थी, फिर आप वो सेकंड में नहीं रिपीट करोगे। आपने सेकंड में क्या करी थी और फर्स्ट में क्या करी थी, वो आप थर्ड में रिपीट नहीं करोगे। Same way, I have experience, I have working experience, I have cleared my CA all by myself. I didn't had any guidance. So I know कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, या मैंने अपने फ्रेंड्स को देख के जो सीखा है, जो अभी तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं इतने साल बाद भी, कि क्या गलतियां हो रही हैं। जैसे आप भी 11th 12th क्वालिफाई कर लोगे, आपसे कोई बच्चा आके पूछेगा कि मेरे को 12th में इतने मार्क्स लेकर आने, आप उसे गाइड कर पाओगे, लेकिन जब आप खुद 12th में थे तब आपको समझ नहीं आ रहा था। So you get a helicopter view once you qualify that thing. So I'm here to transfer that knowledge through. I will be mentoring you. I will be providing you with coaching. I will be providing you with concept lecture. Also, I will be providing you to improve your answer writing. How? For this September attempt, I will be uploading videos on foundation, intermediate law and audit, and foundation business law. These three subjects I will be taking up. In this, how we will be proceeding, like I will be uploading conceptual video on my YouTube channel on daily basis. After that video, I will be providing you with one question that you have to solve and provide me with your written answer. I will evaluate that too free of cost. YouTube videos are also for free of cost. You don't have to pay anything. My only motive is that students face problem to score even 40 marks in this subject, and my objective is that students should clear this subject with exemption, right? So I will be guiding you through that. Like every student is different. I will be providing one-to-one mentor session. I will be taking up your doubts. I will be providing my mail ID and mobile number. You can send the written answer sheets. I will evaluate that and tell you that how to improve your answers. Because बेटा एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता है, वो आपको जानबूझकर फेल नहीं करेगा। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव एग्जामिनर के सामने है, दैट इज योर आंसर की। आपने जो लिखा है सिर्फ वो उसी के थ्रू जानता है आपको, तो आपको अपना आंसर अच्छा लिखना पड़ेगा। कौन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एनी डे इज नॉन निगोशिएबल।
वो हमको रखना ही रखना है। बट हमारे आंसर्स और अच्छे कैसे बनेंगे कि अगर हम उसमें कुछ सेक्शन नंबर कोट करें, अगर हम उसमें कुछ केस लॉ कोट करें। अब स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सेक्शन नंबर कोट करूं तो मैं कौन से वाले सेक्शन नंबर याद रखूं, कौन से नहीं रखूं, कौन सा केस लॉ याद करूं, कौन सा केस लॉ नहीं याद करूं। सो मैं इन्हीं चीजों में आपको हेल्प करूंगी कि क्या मेमोराइज करना है, उसे कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमको नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हमें उसे फिर भी कैसे लिखना है ताकि हमें एक आध नंबर तो दे जाए एग्जामिनर उसमें। कहाँ हमें 0 मिल रहा था, कहाँ हम 1.5 नंबर ले लें, और आपको ही पता है एक एक नंबर की कीमत कितनी होती है, राइट। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है सितंबर अटेम्प्ट के लिए फॉर दीज सब्जेक्ट्स, डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। अपन साथ में पढ़ेंगे, अपन साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आई विल बी टेकिंग अप डाउट सेशंस, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ माय मोबाइल नंबर। आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स, ताकि ये सेम फीलिंग जो अभी आप लोगों को आ रही है ये सितंबर में रिपीट ना हो, राइट। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है उसे जाके देखें, एक आध वीडियो देखें। अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको इसमें और चीजें चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, गिव इट टू मी। अगर 1-to-1 होगा मैं 1-to-1 एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज आई विल अपलोड द वीडियो एंड देन यू कैन वॉच इट। ओके, थैंक यू सो मच, एंड इन द एंड आई विल से बेटा हो जाएगा, जस्ट हिम्मत रख थोड़ी, बस एक अटेम्प्ट और एंड यू विल क्वालिफाई।